दो फिल्में एक साथ अमित जी के साथ। बस मैं तो यही भगवान से प्रार्थना, अरे मेरी आवाज़ लाउड नहीं है? हाँ है। बस मैं तो यही चाहती हूँ और भी फिल्में करूँ उनके साथ। इतना अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। सो दो इकट्ठी आ गई हैं अभी और लालच बढ़ गया है मेरा। थैंक यू। हेलो। और सूरज जी से मेरा सवाल था कि आपने हमेशा पारिवारिक फिल्में बनाई, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर दोस्तों के पास जाएं तो हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है हार्ट ऑपरेशन के लिए क्योंकि सारी बातें दिल की दोस्तों के साथ की जा सकती हैं। इस फिल्म में आपने परिवार से ज़्यादा दोस्तों को महत्व दिया है, तो मतलब ये वैसे तो आप पूरी दुनिया बदल गई, आप नहीं बदले, लेकिन इधर आके आप थोड़ा बदले हैं कि आपका ट्रैक थोड़ा सा बदला है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप फिल्म देखिए मैम, वही चीज़ें हैं, बट फ्रेंडशिप भी तो फैमिली आप मान के चलो ना। अब आज मेरी डॉटर एडिनबरा में पढ़ रही है, तो वहाँ जो उसके फ्रेंड्स है वही, कभी उसका पॉकेट कोई कुछ हो जाएगा, कुछ ये भी तो फैमिली है हमारी। हाँ, तो देन हु डज शी कॉल? शी कॉल्स हर फ्रेंड। सो इट्स द सेम थिंग मैम, रिश्ते ही हैं, दिल के रिश्ते हैं। कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे बेस्ट फ्रेंड बैठे मैम, ही इज हियर, ही इज माय फ्रेंड विवेक। हेलो, थैंक यू। हेलो। This is my college friend Vivek, and दूसरे is I think he'll be shooting Big Boss. No, what's it? नहीं, आज तो नहीं कर रहे वो। अच्छा, सलमान। So these are two my best friends. हेलो हेलो सर। हेलो। सारे सवाल उधर से नहीं लें, एक इधर भी एक इधर भी, सारे सवाल 6 सवाल लगातार उधर हो गए। सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कर रहे हैं। सूरज जी, सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com। जॉर्जिया देश में एक एनुअल फेस्टिवल होता है, फिल्म फेस्टिवल ऑन माउंटेन्स, ओनली फिल्म्स बेस्ड ऑन माउंटेन्स। तो मेरी राय रहेगी कि ये फिल्म उसमें ज़रूर शामिल की जाए और मुझे यकीन है कि वहाँ पर प्राइज़ भी लेके आएगी। Thank you so much. और दूसरा सवाल, ये पहला सवाल तो यही है असल में, पहला बमन जी से। बमन जी, यू सेड दैट यू वेंट थ्रू अ वेरी बैड पैच एंड वाज पर्सनल ट्रॉमा at the time when you signed this film. You were reluctant to sign this in the first place, but you did. The question is, how difficult was it for you to mold your personality according to the character, given the mental state that you were in? Of course, you are an actor, that's always a challenge. And did doing this film in any way help you surmount a few of these personal traumas and tragedies that you were facing? It was easier than you think. I'll tell you why. The day I went to the Rajashri office, just as Kher Saab says, he goes there as if he's going to a temple. I walked in over there, Suraj is standing at the top of the flight of the stairs for someone as humble as I am. And he welcomed me and said, I'm so grateful. I said, please don't say that. From that moment on, and Anupam ji also said, it'll be a spiritual experience for you. And he was right. And the moment I stepped in, believe me, I believe in good vibrations. And lots of my problems just disappeared from that moment on. I sat with him, and I sat with history. I sat with all those posters. I sat with this man, and I felt better. Then going to Nepal, I think it was a memory that is forgotten. And to get into the character, you just have to hang with these actors and you'll be fine. It's very easy. Just hang with them and hang with the love and hang with the encouragement. We are like school kids over there, encouraging, looking at each other after every shot. Kaisa tha? Ek aur bol, ek aur kar. That's friendship. That's the love of the craft. That's the love of what we are presenting. That people supported you and every take of yours. Anupam ji is holding my hand and pressing my hand. ये expression देखो, ये अच्छा, बहुत अच्छा किया. This is like we are like school kids. That innocence pushes away all the darkness in your life. So it was kind of cathartic. That's the word, if you want to use a nice big English word. Right. Yes. Thank you. Hello sir. Thank you so much, sir. One last question, please. नहीं चलते। Hello sir, hello ma'am. My question is from Anupam sir. I'm Shachi Chaturvedi from Absolute India News. Sir, this is your 5th film with Rajshri. How will you explain your experience throughout the journey?
I mentioned it. I mentioned it. It's beautiful. It reaffirms my faith in goodness. My father used to say the easiest thing in the world is to make somebody happy, and they believe in that. I've seen it, and also while we are at this juncture talking about, I must say that also they have a knack of collecting the best people who are working with them, the technicians, the assistants, the sound recordists, the people who have put the Manoj, our cameraman. I think वो सब इकट्ठे हैं. Surabhi, the one who heads who's the creative, इन्होंने बहुत अच्छे इकट्ठे लोगों को किया था. तो कुछ फिल्में इधर तो पैसा भी मिला, कुछ फिल्में आदमी पैसे के लिए करता है, कुछ अपने आत्म संतुष्टि के लिए करता है, ग्रो अप करने के लिए करता है, सीखने के लिए करता है लाइफ के बारे में. और एज एन एक्टर ऑल्सो दिस इज वन ऑफ माई, इफ आई हैव टू से 10 बेस्ट फिल्म्स, आई वुड से आउट ऑफ 530 this will be one of my 10 best films. Suraj ji, hi, this is Sohail over here on your center. Sohail from Instant Bollywood. सूरज जी, आपको और ऊंचाई की द एंटायर टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड कंग्रेचुलेशंस टू राष्ट्रीय प्रोडक्शन जो 75 years में यू नो देव चेंज लाइव्स यू कैन से मिलियन एंड मिलियन पीपल एक्चुअली यू नो थ्रू आउट योर सिनेमा. दोस्ती की बात करते हैं तो हम जानना चाहेंगे सभी से यू नो हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में आप किसको अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त मानते हो. इनफैक्ट अभी फ़िलहाल तो यू नो सूरज जी है, पर उनके अलावा सारिका जी, अनुपम जी, आप सबसे जानना चाहेंगे यू नो फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में जैसे हम काम करते हैं उस वक्त तो दोस्ती रहती है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में सीमा विश्वास जी, सीमा विश्वास जी, अनुपम जी. देखिए, दोस्त तो जो होते हैं जो बचपन से आपके 8वीं क्लास से आपके साथ बैठते हैं, उस हिसाब से मेरे 2 दोस्त हैं जिनसे मैं आजकल नाराज़ हूँ, क्योंकि मैंने उनको आगरा बुलाया था अपनी बीवियों के साथ, वो उन्होंने मुझे जवाब तक नहीं दिया. तो मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ. बट उनका नाम है विजय सहगल, जो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में हेड कैशियर से रिटायर हुए. दूसरे सतीश मल्होत्रा जो चंडीगढ़ के पास रहते हैं, जो एजुकेशन बोर्ड में रहते थे. फिल्म इंडस्ट्री में आई एम वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर अनिल कपूर एंड सतीश कौशिक. बाकी रिश्ते सबसे अच्छे हैं, बट बहुत सारे रिश्ते होते हैं जब फिल्म कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं. बट विद दीज 2 people आई हैव कंटिन्यूड माई फ्रेंडशिप एवरी डे ऑन वी टॉक ऑन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. सूरज जी आपसे या उन्होंने तो बताया कि वो बैठे हैं. वो हमें नहीं पता था. आज तो मेरा नाम लेंगे और या बमन का नाम भी लेंगे, मगर इन्होंने तो दोनों. और वेरी लकी यू आर सर. बमन जी, नर्सरी स्कूल से मेरे एक फ्रेंड फिरोज is like a piece of my heart, and he passed away in that period in COVID, and it affected me very badly. And in many ways, you know, Firoz's passing, it was like going in his honor, just like we went in Danny Saab's honor. And I hate to say this, but it was cathartic for me. Firoz was my brother, my everything. इंडस्ट्री से अगर हम हमारे I have lots of friends in the industry. I get along famously with Ritesh and Abhishek and Farah and this gentleman over. You didn't acknowledge me. It's okay, but I'm. You are on stage. It's okay. It's okay. He knows we love each other. But yeah, and anything I need to clear my doubts, I speak to him. It's great to have friends. It's great to have friends. या नीना जी आपसे जानना चाहेंगे. क्यों? बस ऐसी दोस्ती की बात हो रही है. मेरी पर्सनल बातें क्यों जानना चाह रहे हैं? जवाब यहीं से आ रहे हैं. मेरा सवाल एक और अच्छा, मैं बता देती हूँ यार, नाराज मत हो जाना. मेरी फिल्म इंडस्ट्री से मेरी फ्रेंड सबसे जिनसे मैं रोज काफी बात करती हूँ, सोनी राजदान है. सूरज जी over here towards your right. सूरज जी over here सूरज जी, towards your right. मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे भी है. एक्चुअली इतने सालों से हमने अपना ट्रेडिशन रखा है, यू नो 75 years से, कि साफ सुथरी फिल्म, फैमिली पारिवारिक फिल्म हम बनाएंगे. पर कभी लगता है कि यू नो 75 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. सिनेमा हैज़ चेंज अ लॉट, एंड समटाइम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे लगता था कि यू नो वो चेंजेस लाना ज़रूरी है, या बहुत से लोगों ने कहा भी होगा कि यू नो लेट अस मूव अ बिट, यू नो जिस तरह से लोग चाह रहे हैं, जिस तरह से सिनेमा बन रहा है आजकल. कभी लॉसेस भी
बातें हुई कि नहीं हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी डिस्कशन होता होगा, तो कभी उस तरह से कभी कोई ऐसा दौर आया जहाँ पर यू हैड फेल्ट लाइक कि नहीं कुछ हमें चेंजेस करना है, और जिस तरह से लाइक फिल्में जो बनती है आजकल, डेफिनेटली लाइक इट्स व्हाट आर यू डूइंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आगे भी इस तरह से काम करते हैं, लोगों को पसंद करें, बट देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एज अ प्रोडक्शन हाउस, एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर आप देखो तो माई करियर मेक्स नो इकोनॉमिक सेंस. 35 years, 7 films is not. But when I started out, I had only one. I want to be a But writer. it makes financial sense. All your films have been blockbuster. But only 7. So to answer your question, losses वगैरह मैंने तो I never started off. I only wanted to be a writer and a director. That's all. तो जब इतना मिला है तो अब इस समय जो मैं चाहता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि कुछ और बनाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ और आता भी नहीं. So I want to, and I really feel responsible when people love me and they look at me when they come to know that I made Hum Aapke, when I have nothing else I want. Because I want to make more, because maybe this is what I'm meant to make. और इतनी कहानी और है, हर खिड़की खोलो तो कहानी है, तो मैं क्यों जाऊँ कुछ और बनाने? हर खिड़की खोलो तो कहानी. Thank you so much. One last question, Himesh bhai. I will just take it from there. Suraj ji, Himesh this side. Sir, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ. Suraj ji, Himesh this side. Firstly, congratulations. This is a film I would want to watch with my family and friends, both. Yeah, man, that's a good boy. So, my question to you, Suraj ji, you have made, this is your 7th film, and 6 films of them had the central character named Prem. I believe this is the first time when you are not, your character is not named Prem. No Prem. So, number one, was it a conscious decision for you to not name it Prem, and when will Prem be back? My nickname in the film is Prem. Arey, let him answer. I'll come to you, sir. I'll come to you. No, like I said कि इसमें ना मैंने सब बंधन ही तोड़ दिए, मापदंड कि ये करने से उतनी, एक चाम था प्रेम रखो तो शायद चल जाए, ये अभी मैंने छोड़ ही दिया वो सब, बिकॉज सब छूट रहा था पेंडेमिक में, तो क्या मैं पकड़ के रखता, तो इसमें मैंने सब बंधन तोड़ दिए. बट आई नो सलमान इज विथ मी, बिकॉज व्हेन आई टोल्ड हिम आई एम मेकिंग दिस, सबसे पहले बोले सूरज तू बना क्या रहा है, what are you making? Then he's asking you, why are you going to the hills? Then he also told me, I can do this film. I said no. Because we all know that he can climb, but I need a different state of... Who can't climb? No, not who climb. Who can look as if they cannot climb. अच्छा, okay. या एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, एंड लड़ाई भी करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था. बहुत सारी नोक चोक लड़ाइयाँ हैं इसमें. आई थिंक दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ लाइक इट सो मच. बट या गो अहेड. आई फील अभी जो लड़ाई है वो इस चीज़ की है कि टू फॉर अस, फॉर स्पेशली एक्टर्स लाइक अस, हमारे लिए लड़ाई इस चीज़ की है कि और काम मिलना चाहिए इससे, और काम नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है. और काम कब मिलेगा? जब आप लोग देखेंगे ये फिल्म, और अगर आप देखेंगे और हमारे प्रोड्यूसर्स को थोड़ा फ़ायदा होगा तो हमको वो दोबारा याद करेंगे. तो अभी हाल फिलहाल लड़ाई सिर्फ इस चीज़ की है. मैं आपको बता दूं कि टी सीरीज़ का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस फिल्म से, तारा वसंत बिलाल से, एंड बहुत सारा काम भी मिलने वाला है. आप लोग तो बताइए कि शादी कब कर रहे हैं आप लोग? भाग के शादी कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं आप लोग? एंड हाँ, पहले तो ये होना चाहिए 28 आपसे स्टार्ट करेंगे. शादी के बारे में कुछ हमारे प्लान्स हैं, मेरे पर्सनल प्लान्स 28 तारीख को थिएटर में मैं रिवील करने वाला हूँ. आप देख लेना. तो वो शादी के प्लान जानने के लिए आपको थिएटर में आके कुछ 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. ओके. या तारा जी, आपकी कुछ प्लान? सोनिया या तारा, आप किससे पूछ रहे हो? ये सवाल तारा, दो अलग लोग हैं. आई नो, दो अलग लोग हैं, लेकिन ये सवाल तारा जी से है कि बताइए कि भाग के शादी करने में ज़्यादा बिलीव करती है नहीं. या नहीं? तारा भागने में शादी, आई मीन भाग के शादी करने में नहीं बिलीव करती. वो परिवार से बहुत, वो परिवार को बहुत मानती है, अपनों को बहुत मानती है. तो अगर वो अगर वो शादी करेगी, हाँ, अगर वो शादी करेगी, शी वुड डेफिनेटली वांट हर फैमिली देयर. सो आई डोंट थिंक वो भाग कर शादी करेगी. एंड मैंने नोटिस किया लोकेशन, ये सारी कुछ चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल है. भाई आप बताइए कि कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस है
एक दूसरे के साथ का लोकेशन में कहाँ शूटिंग हुई फिल्म की, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा डिफरेंट अंदाज में? तैश के बाद मैंने दूसरी बार लंदन में शूट किया है, तो मेरे लिए थोड़ा सा फेमिलियर था। लंदन लकी रहा है मेरे लिए, क्योंकि तैश में काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला था। तो लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जॉन इब्राहिम सर, भूषण जी, और जो हमारे ऑन सेट जो मीनाक्षी दास आई हुई थी, तो उन्होंने आई थिंक बहुत ही इम्पॉसिबल सिनेरियो में इस फिल्म को शूट किया, जो कि कोविड के चलते हुआ है ये शूटिंग, और लंदन में भी कोविड था। तो कमाल का एग्जीक्यूशन रहा है। जी एंटरटेनमेंट के अम्ब्रेला से कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसकी एक क्वालिटी आप तय मान सकते हैं कि क्वालिटी वाइज एक अच्छी चीज़ होगी। तो वो क्वालिटी को मेंटेन करना कोविड के टाइम में ये कमाल की चीज़ है, और मैं काफ़ी क्रेडिट मीनाक्षी को इसमें दूंगा। ओके, सो अगेन मेरा सवाल वही है कि अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं हर्षवर्धन जी, या लव मैरिज में बिलीव करते हैं? मैं सर काम मिलने में बिलीव करता हूँ पहले, ऑनेस्टली। आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला, हाँ पूछते रहिए। नहीं ऑनेस्टली सर, नहीं, मैं आई वुड लव टू, ऐसा मुझे कोई एलर्जी नहीं है आपके सवाल से। एक्चुअली बात यह है कि ये शादी एक लग्जरी वाली चीज़ लगती है मुझे। जो आप जब लाइफ में सब कुछ ठीक होता है तो आप किसी और को जोड़ते हो अपने साथ। जब आप खुद ही मुश्किल से चला पा रहे हो तो आप क्या किसी और को भी सफ़र कराओगे या किसी और को भी परेशानी में डालोगे? नहीं। मैं तो कम से कम वैसा इंसान नहीं हूँ। मुझे जब खुद का लगेगा कि कंफर्टेबल एक सिनेरियो हो गया तो मैं किसी और से जुड़ने के बारे में सोचना शुरू करूँगा। सो आई फील शादी को लाइटली नहीं ले सकते, मतलब इट्स नॉट अ लाइट इवेंट कि कर ली शादी यार, हो गया, देख लेंगे, झेल लेगी, बहुत लोग तो वो नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता। मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं पहले कंफर्टेबल और फुलफिल्ड फील कर रहा हूँ, एंड देन वो चीज़ मैं शेयर कर पाऊँ किसी और के साथ। ये सवाल अब सोनिया जी से है कि लव मैरिज में बिलीव करती हैं? मैं दोनों में बिलीव करती हूँ। You know, I've seen successes and failures in both. I've seen some arranged marriages that work out, some that are terrible, and then some love marriages that are terrible too, and some that are amazing. So I think इंसान पे depend करता है, and like he said, it's very very important to be whole first. जब तक आप एक पूरे इंसान नहीं हो, this whole concept of like, oh, you complete me, I've never liked that. You should be complete, and you should just add to my life, and I should add to yours. Wow. I know. Very good. I have so much gyan. No, but yeah, I think both are fine. It depends on whatever your preference is. But yeah, you should just work on yourself first, and when you're ready, you'll know you're ready. जैसे कि आपने बताया कि काम में बिलीव करते हैं, काम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो बैक टू बैक आपकी टी सीरीज़ के साथ में 3 फिल्में आने वाली हैं। एक तो ये, उसके बाद 2 और हैं। बहुत सारा काम है आपके पास, और मैंने सुना है कि बहुत सारा काम आप ड्रॉप भी करते हैं, उसकी बातें ऑफ कैमरा करेंगे। तो बहुत सारा काम है आपके पास बैक टू बैक टी सीरीज़ जैसे प्रोडक्शन की 3 फिल्में। आप तो बताइए कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है हर्षवर्धन के लिए? सर बहुत सारा काम तो मैं नहीं मानता इसको। मेरी जो सपने, जो इच्छाएं, उसके अगेंस्ट तो ये बहुत ही कम काम है ऑनेस्टली। और जिस हिसाब से कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उस हिसाब से तो मैं बहुत ही पीछे हूँ, क्योंकि वो लोग तो बहुत काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। बट मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो हम लोग के यहाँ बहुत एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि बॉलीवुड में तो काम मिलता ही नहीं है आउटसाइडर्स को। प्लीज़ देख लीजिए, इस इंटरव्यू में 2 आउटसाइडर्स आपके सामने बैठे हैं। भूषण कुमार जी, जॉन इब्राहिम सर, इन लोगों ने हमेशा नए टैलेंट को सपोर्ट किया है, और अब तो ऑलरेडी उनके साथ ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस हो गया है। ये करी, फिर इसके बाद संजय गुप्ता सर की एक फ़िल्म कंप्लीट करी है, फिर विजय नाम्बियार सर के साथ एक और फिल्म कंप्लीट हो गई है। तो ये सब टी सीरीज़ के साथ ही, तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जो बताया जा रहा है या आपको जो मज़ा आ रहा है सोचने में, उसके परे एक और रियलिटी है, उसको प्लीज़ थोड़ा सा उस पर भी नज़र डालिए। देयर इज़ अ ब्राइटर साइड, देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड टू एवरीथिंग। प्लीज़ हिम्मत आप भी रखिए, ताकि हमें भी हिम्मत रखने का मौका मिले, और आप पेशेंस रखेंगे तो हमें भी पेशेंटली अच्छी चीज़ें चूज़ करने का मौका मिलेगा। Agree. सो लकी फील करते हैं आप लोग टी सीरीज़ जैसा प्लेटफॉर्म हो, एंड साथ ही साथ जॉन अब्राहम एंड भूषण कुमार जी जैसे प्रोड्यूसर हों, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बड़े बैनर एंड बिग में काम करने के लिए। बिल्कुल। Yeah, I feel very lucky. I mean,
to know that they have faith and they're willing to invest in us. It's an investment, right? Like you're putting a lot of your time and your effort and money and like manpower into us too, and you really believe that we can deliver. You know, that for me, I'm very grateful कि किसी को इतना विश्वास है मेरे पे. चलिए अब मैं तारा वर्सेस बिलाल पर आता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है आप लोगों के अंदर जो हमें फिल्म में भी दिखाई देगी, तारा वर्सेस बिलाल में भी देखने को मिलती है, और आप लोग में भी रियल लाइफ में हर्षवर्धन और सोनिया में भी सिमिलरिटी है. ऐसे कुछ तो होगा सोनिया जी? हाँ, थोड़ा like not 100%, but हाँ कहीं ना कहीं है. I feel any character we play कहीं ना कहीं there's a part of us in it. For Tara, I think it's her. Oh, I don't know. I think it's sometimes I think it's her go-get. It's her determination. उसको पता है उसको क्या चाहिए, and I think कहीं ना कहीं मुझ में भी वो है. मुझे लगता है सर इस फिल्म में सबसे जो भी मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में वो सब कुछ इस कैरेक्टर में है. दैट वो समथिंग जिससे मुझे बहुत डर लगा था शुरू में, क्योंकि कई बार आप कोशिश करते हो कि वही चीज़ें मिले जो आप रियल में भी फील करते हो, ताकि थोड़ा इजी हो जाता है. बट इसमें बिल्कुल ही उल्टा था. एक तो बहुत इंग्लिश में बात करनी थी, वो भी एक्सेंट के साथ बात करनी थी. फिर वो बहुत ही अच्छे कपड़े, मेरे को आदत नहीं है, मैं जब तक मेरे कपड़े थोड़े फटे ना हो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता. तो मुझे थोड़ा सा. But you like driving bikes. बाइक्स इज द ओनली कॉमन. लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ, हाँ इन्होंने बिल्कुल पलटन के टाइम द ओनली. नहीं मैं ठीक हूँ. बाइक्स में अगर हम बात करें तो दैट्स द ओनली कॉमन स्ट्रीक. लेकिन उसमें भी डिफरेंस ये है कि मेरे को रेसिंग बाइक्स बिल्कुल रियल लाइफ में पसंद नहीं है. मुझे नेकेड बाइक्स पसंद है. लेकिन बिलाल को ये वाली जो वूम वूम ये आवाज़ आती है, ये वाली बाइक्स पसंद है. और मेरी जो पर्सनल लाइफ में मुझे बाइक्स पसंद है वो कैफ़े रेसर्स मुझे पसंद. तो दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट जिससे मैं शुरू में डरा था. लेकिन जब मुझे लाइफ में डर लगा है और जब मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला गया है तब मैंने कुछ नया सीखा है. तो वो मेरे लिए वर्क शायद करा है. होपफुली ऑडियंस को भी ऐसा लगे. सोनिया जी, जब आपको सबसे पहले बताया गया कि इस फिल्म में एक आपके साथ में एक बहुत ही हैंडसम हम होने वाले हैं, उनका नाम होगा हर्षवर्धन राणे, ये आपको कब पता चला एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? ये मुझे पता चला एट द एंड जब मुझे फिल्म मिली. मुझे ये भी पता था कि जॉन अब्राहम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर जाके पता चला कि ये भी है इसमें. I was very excited. And I watched Sanam Teri Kasam when it came out. I know that you don't believe people watched it, but I watched it. Wow. But yeah, so I was very excited. I've seen his work, and he's worked with my brother as well. So फिर Tesh में I knew, yeah. Brother, so इनके भाई के साथ काम किया हुआ है मैंने. हाँ, अंकुर राठी. He was also in Tesh. वो तैश में थे, तो वो वही कह रही है कि इन्होंने मेरे भाई के साथ भी काम किया हुआ है. हाँ. अभी आपने बताया. तो आप बताइए कि जब आपको बताया गया कि सोनिया जी होने वाली है, तो सर मेरा तो मोस्टली ऐसा रहता है कि ऐसे फिल्म फैमिली से मैं नहीं हूँ जहाँ पे ये डिस्कशन ही नहीं होता है मेरी लाइफ में कि ऑपोजिट कौन. मतलब हाँ नहीं थैंक यू. बट ऐसी मेरी आई हैव नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे मैं बातें करूँ कि सामने कौन है. मेरे लिए यही बड़ी बात है कि सोनिया ने इस फिल्म के लिए हाँ बोली. एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि दैट शी ट्रस्ट्स इन द फिल्म, इन द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर एंड यू नो इन द स्क्रीन स्पेस विद मी. आई वॉज वेरी थैंकफुल. शायद मैंने पहले दिन मिलते ही इनको थैंक यू ही बोला था. मुझे याद है मैंने इनको थैंक यू बोल दिया था कि थैंक यू सोनिया. और मैं वापस जाके मैंने प्रोड्यूसर को यही बोला था कि उन्होंने कहा तो कैसा रहा आपका रीडिंग कैसा रहा. तो मैंने कहा कि बहुत ही बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी है सोनिया की. और शी इज़ वेरी अवेयर ऑफ इट, वेरी केयरफ्री, बट उनका इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड विच आई थिंक वर्क्स एज एन एक्टर. क्योंकि इट्स द मेल एंड द फीमेल एनर्जीज राइट कमिंग टुगेदर, यिंग एंड द यांग. सो मेरे लिए वो Ivory and ebony, is that correct? I have no idea what that is. That is basically the
द एनर्जीज ऑफ जो क्लासिक मिल्स एंड बून्स की जो एनर्जी होती है, द डार्क ब्रूडिंग गाय एंड अ वेरी Bubbly too, गॉर्जियस girl. एंड वेरी timid तो आप बोलते हो, but I would say petite, timid, very sweet kind of. That combination always works for me. Comes from the classic novels. तो मुझे लगता मुझे वो बहुत satisfying लगा पहली रीडिंग में कि wow, that is working. अब so वहाँ से I felt very relaxed. इनको एक प्रोजेक्ट तो पता चल गया हमें, बैक टू बैक 2-3 फिल्में टी सीरीज के साथ। आप बताइए कि नेक्स्ट और क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है आपकी तरफ से, एंड क्या कुछ धमाका करेंगे आप? मैं धीरे धीरे धमाका करूँगी। हाँ, slowly going with the flow. अभी मतलब I'm just going with the flow, seeing where the journey takes me. ओके, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए एक लास्ट सवाल कि गाना आया है बहुत ही मतलब जैसे कि आपका गाना आया था सनम तेरी कसम, लोगों को बहुत ही पसंद आया था, मैडम ने भी बोला कि बहुत ही पसंद आया। ये गाने की भी ट्यूनिंग कुछ उसी तरह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा आपको? इतना अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। गाना मुझे आप लोग बताइए कि आप में से कोई गाना गाता है? सर, ये फिल्म साइन करते टाइम ना एक बहुत बड़ी दिल में शांति थी कि टी सीरीज की फिल्म है, तो गाने तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, एक पिलर हो, एक पिलर होगा। भूषण सर की जो गानों की सेंस है वो incredible. We all go by it, you know, the whole industry vouches for it. वाउच करती है इंडस्ट्री उस पर। तो आई फील कि वो तो एक हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली बात थी कि जे एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी होगी, टी सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गाने अच्छे होंगे। अब हमको मेहनत करनी है और पूरा पैकेज को जितना हो सकता है अच्छा बनाना है। सो वी वर रियली हैप्पी। एंड 28 थिएटर में आने वाली है, ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप लोग? बहुत सारी बातें तो कर दी है, Please go and watch our film on the 28th, please. देखिए भाई, ये अरुण सर मेरे सामने बैठे हैं, ये परेशान हो गए हैं, 6 साल से मुझे देख रहे हैं इधर उधर इवेंट पे, और इनके पास मेरे से पूछने को कोई सवाल होता नहीं है क्योंकि मैं फिल्में कम कर पा रहा हूँ। अब तो करेगा ना? अब और करना चाहूँगा, तो आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो और काम मिलेगा, और अगर नहीं देखेंगे तो फिर आप कंप्लेन मत करना इंस्टाग्राम पे कि क्यों नहीं करते हो फिल्म। ये वो ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ, तो ये अरुण जी के लिए मुझे और काम करना है, जिसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। प्लीज आ जाइए। लास्टली दिवाली आ रही है, सो दिवाली की सारी शुभकामनाएं। दिवाली के ढेर सारे शुभकामनाएं। आपकी फिल्म भी आ रही है 24 दिवाली, 28 तो दिवाली की so much I don't know what to say. बोलो अपना नाम। Hi, my name is Sonia Rathi. हाय, मैं हूँ हर्षवर्धन राणे, और सोनिया ये बोलना चाहती है कि इस दिवाली पे 150 रुपए के पटाखे कम फोड़ लेना, थोड़ी मिठाई कम खाना, 100-200 रुपए की, और उस पैसों से टिकट खरीद के प्लीज तारा वर्सेस बिलाल देख लेना, वरना हम लोग दिवाली पे कुछ नहीं खाएंगे। नहीं, मैं तो खाऊंगी, पर हैप्पी दिवाली। Wishing you all a very very happy Diwali. आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Super. Thank you. Thank you. Thank you.